in okay. So is this picture visible to you all? Yes, ma'am. Okay. Fine. So today first we will do what? We will begin with the next chapter, that is chapter 2, where the different display devices we will be studying one after the other. And the first topic under this display devices, video display devices, is the CRT. Then under CRT, there is beam penetration CRT, shadow mask CRT. Then after that, few other display devices we will study. So first we will study the CRT.
Then after that, few sums were left for yesterday's class. We will be solving that, 2 or 3 more sums. Okay? Okay. So we all know that in a display system, that is in a PC rather, in any workstation, the most important part is what? The display system. Because even if the computer is doing all the right things, but if we cannot view it, then it is of no use to us. So the display system is the most important system. Now, what is the display system? It is the space where all the graphical images, drawings, pictures, all the graphics are displayed, right? So it is responsible for graphic display, and common types of display systems are what? Common type of display system are raster scan display, random scan display, then there is flat panel display and so on. So this display system, it has 3 main parts. First part is a cable. First and foremost, a cable must be there that will carry the image between the monitor screen and the display adapter, right? Then a display adapter is there, which will create and hold the image information, and the monitor is there, which will display the information. So one frame buffer or the display adapter concept was there, which will hold the image, information about the image, and one screen was there where, or monitor, where the information was displayed. And in between these two, connecting is the cable that will carry the image between this display adapter and this monitor. Okay, so the display devices we refer to as the output devices, because there the output of my information is displayed. So output video display devices. Fine. And we all know that recently, maybe in the last 10 to 12 years, a lot of upgradation has occurred when it comes to TV. But earlier, when in the 1990s, when I was rather born, so, and much before that, the concept was, in my childhood, the concept was a simply black and white CRT TV. Then when I was in class 5 or 6, I first saw the color CRT TV, right? So first there was a normal black and white CRT. Then there came, after 20 years, maybe came the concept, 20-30 years, maybe came the concept of a color CRT. Then from color CRT, the CRT was abolished little by little, and then came flat panel display, plasma panel display, then there came LCDs, then there came LEDs, and nowadays you only see LEDs. Nobody buys a CRT monitor or a CRT TV, right? Only LED TVs are there. So in order to understand where the upgradation was done, we need to study, or we need to first understand the basic principle of any TV. So we will first begin with the cathode ray tube concept or the CRT concept. Now, in this picture, you will see first I have marked something as pin. Pin means pin. This pin is that plug pin through which it is connected to my plug in my electric circuit board. There is a board where the TV gets connected. This is that pin which gets connected in my electric board in my room. Then you will see a small base heater is there. After that, a space is there where a lot of things are there. You will see a cathode grid. I have marked it in pink. Then you will see some deflection plates. Few of them are anode plates. Like
they have some different work. I will be explaining those. So the pink is the cathode grid, right? Then comes a few deflection plates. Some horizontal deflection plates are there first, which are colored in green and violet. And then there comes some vertical deflection plates, which is marked in blue. And then the portion which is marked in light green, and I have tried to draw an eye, is the monitor, is the screen. And on that screen, few green colored dots I have shown, which means the screen is coated with phosphor. This is the basic architecture behind the screen. Whatever the TV used to had, this is the architecture inside what used to have, right? Now, what used to happen? The CRT, if you notice, it has a cathode, which I have marked as pink. It has a cathode. Now, we all know that cathodes are negatively charged terminal. Now, in a CRT, this terminal is a heated terminal. That means it has a filament. Suppose when electricity will be provided through the pin, the base heater will be heated. Whenever the base heater will be heated, electrons will be starting to come out of the filament, the pink color filament. Electrons will be starting to come out of the filament. Now, cathode is negatively charged and electrons are also negatively charged. And when negative come together, they will repel each other. So what happens is this entire heater plus cathode plus grid, it is a electron gun. That means current comes through the pin from the electricity board. As a result, the base heater gets heated. As a result, the filament gets heated. As a result, whenever a filament will get heated up, it will emit electrons. Now, since cathode is negatively charged and electrons is also negatively charged, electron will repel each other and the electrons will get scattered. So after that pink color, when the electrons will come out, it will be scattered in this grid. But what is the work of the grid just before the cathode which is placed? That the grid's work is to focus the electrons in a single path so that the electrons do not go here and there and the electrons gets focused on my screen. As much as electrons I will be able to focus on my screen, the more brighter, the more beautiful picture or the more clear picture I will get. So electricity comes through pin, it gets to the base heater. The heater has a filament. The filament gets heated up. It emits electrons. Electrons are negatively charged. Cathode is negatively charged. Cathode and electrons will repel each other and the electrons will be scattered. In order to make the electrons come to one common section and to make the electrons focused in a longitudinal streamline so that the pictures get portrayed in my screen very nicely, this is the work of the grid. So the work of the grid is to focus the electrons as much as possible in a single line. Up to this, is it clear? मैम बोलो मैम फिलामेंट कौन वाला है? वही से पिंक वाला एक छोटा मैम तो मैम जैसा बोले ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा पिन के थ्रू
मैम वो फिर उसके बाद मैम बेस हीटर को हीट करेगा। मैम हाँ, उसके बाद वो फिलामेंट को जब तुम हीट एक करेगा तब मैम। हाँ, तुम एक छोटा बल्ब, जो छोटा छोटा बल्ब आते हैं ना, पहले आता था छोटा बल्ब, अभी तो सब एलईडी हो गया है। छोटा बल्ब को नोटिस करो, उसका पीछे जो बेस हीटर था तुम लगाते थे, और अंदर थोड़ा कॉइल बोल के छोटा सा एक फिलामेंट था ना, वो पहले मेरा यस ग्लो होता था, फिर उसके बाद मेरा बल्ब पूरा ग्लो होता था, है ना। और जब हम लोग ऑफ करते थे, लाइट चला जाता था बल्ब का, और हल्का रेडिश होके होके फिलामेंट नॉर्मल कलर में आ जाता था। याद है बल्ब का नेचर? यस हाँ, ऐसा वाला एक स्प्रिंग की तरह दिखता था छोटा सा फिलामेंट, तो वही फिलामेंट हमारे अभी तो नहीं, वो सीआरटी टीवी में भी था। हीटर के साथ फिलामेंट अटैच रहता है, जब भी करंट आएगा हीटर को मैम। हीट होगा, एंड एज अ रिजल्ट फिलामेंट भी हीटेड अप हो जाएगा। बोलो। मैम जैसे जब वो फिलामेंट हीटेड अप होगा तो वो हीट होने के बाद ही वहां से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा। हाँ, ठीक ठीक, क्योंकि यही तो फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। दिस वाज द फंडा ना। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से लाइट पाते कैसे थे? इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफॉर्म करके उसको हम लोग लाइट की तरह दिखते थे। हाँ बोलो। यस समझ में आया? यस अच्छा, तो जस्ट मैम लाइक, हाँ बोलो। मैम ये फिलामेंट कौन सा मेटल का है? कौन से? मेटल का। फिलामेंट कौन सा मेटल का मतलब? मैम जो यहाँ पे फिलामेंट अटैच्ड है वो किस मेटल का होता है? टंगस्टन। टंगस्टन मेटल का होता है। तो सारा जो फिलामेंट्स है हम लोगों का, जो लाइट बल्ब्स में यूज होता है, वो टंगस्टन मेटल का होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। जो जितना भी मेटल्स है हम लोगों के पास, टंगस्टन बोल के एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। सो जितना टेम्परेचर दोगे उतना आउटपुट ज्यादा मिलेगा, उतना ब्राइट लाइट होगा। इसलिए फिलामेंट के लिए टंगस्टन मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है? ओके मैम मैम। वो जो ग्रिड है वो भी मेटल है। हाँ, मैम वो भी टंगस्टन का होगा। माने कौन सा ग्रिड का बारे में बोल रहे हो? वो मैम वो कैथोड के जो सामने कैथोड जो है ना। ग्रिड है? यस मैम वो वाला ग्रिड। हाँ नहीं, वो टंगस्टन का नहीं होता है, वो निकल का होता है, निकल मटेरियल का होता है। एक वायर मेश की तरह ना ओके। दिखता है, मतलब जो पत्ते होते हैं ना हम लोग के, उसके ऊपर वेन्स जैसे एक मेश की तरह होता है। तो कैथोड के सामने एक ग्रिड, मेश की तरह एक ग्रिड रहता है, निकल मटेरियल से ग्रिड बनता है हम लोगों का। मैम इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट होगा क्योंकि मैम वो सारे इलेक्ट्रॉन को एक हाँ, डायरेक्शन में पर जाने के लिए टंगस्टन फोकस से करता कम ही है। है। ओके। और ये जो कैथोड है ना, ये भी तुम्हारा मतलब एक एलॉय से बनता है, मतलब अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। एक सेल्सियम बोल के एलॉय मटेरियल है, कैथोड हमारा उस मटेरियल से बनता है। जो अलग अलग तरीके का, हर 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 एक अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मटेरियल यूज किया जाता है।
तो तुम लोग अगर मतलब किसी भी बुक पढ़ोगे वहां पे लिखा रहता है कि कैथोड बनाने के लिए ये मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, फिर फिलामेंट के लिए ये, फिर ग्रिड के लिए ये, वो मिल जाएगा। ग्रिड का बस काम ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, जो भी तुम बोलो, वो जो आ रहा है कैथोड से, वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लो में सामने की तरफ फोकस्ड करके देगा। इधर उधर भटकते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है सबको एक जगह पे आके फोकस्ड करके सामने तक देगा। ये ग्रिड का काम है, ताकि सुंदर सा इमेज मिले, एक अच्छा सा, मतलब थ्रू आउट द स्क्रीन अच्छे से फैला हुआ एक इमेज मिले। ठीक है, और ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट वैक्यूम में, मतलब तुम देखना फिलामेंट के बाहर बल्ब में भी एक छोटा सा उसका कंटेनर होता है ना। फिलामेंट के बाहर एक छोटा सा कंटेनर होता है, फिलामेंट ऐसे ब्लैंक नहीं रहता है बल्ब में भी। मतलब वो जो कंटेनर के भीतर जो फिलामेंट है वो कंटेनर वैक्यूम से भरा है। सो क्या होता है, द फिलामेंट इज इनसाइड अ वैक्यूम एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये फिलामेंट से वैक्यूम की तरह आके वो एक दिशा लेके आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, ये तो कैथोड तक गया। अब कैथोड तक जाने के बाद क्या करेंगे, अभी सारा चीज अगर मेरा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा तो हमेशा रिपेल होता जाएगा। तो मेरा तो हमेशा फोकस में आना चाहिए, मेरा जो एंटायर बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, दैट मस्ट बी फोकस्ड, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड है, this accelerating anode is used to speed up the movement of the electrons. So, और फर्स्ट तुम देखना प्री एक्सेलरेटिंग एनोड का एक सेट है, देन फोकसिंग एनोड का एक सेट है, देन एक्सेलरेटिंग एनोड का एक सेट है। तो हर एक जो सेट्स है एनोड का, ये मेरा बस काम ही करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन्स को आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाने देगा, मेरा इलेक्ट्रॉन्स को फोकस्ड करके भीतर रखेगा। बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो आउटर कोटिंग ऊपर नीचे अगर पॉजिटिव है और भीतर का इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव है, मतलब तुम्हारा सारा उस रीजियन के भीतर ही जाएगा। हो सकता है एक दो इलेक्ट्रॉन्स गलती से इधर उधर चला जाए, पर मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इनसाइड दिस स्ट्रीम। So that is why few anode grids are there whose main work is to accelerate, means उसका मूवमेंट ज्यादा करना है। अब मूवमेंट बाय एक्सेलरेशन बस स्पीड ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा ब्राइटनेस से वो हिट करेगा स्क्रीन के ऊपर, और ज्यादा ब्राइटनेस से अगर हिट करेगा स्क्रीन के ऊपर तो तुम्हारा पिक्चर और भी क्लियर दिखेगा, है ना। तो इसलिए एनोड का काम ही यही है। All the focusing anode, pre-accelerating anode, accelerating anode, their work is to work. First work is to keep the electron beams in the same line, in the focused manner towards the screen. The movement should be towards the screen. And the second is so that their speed gets uplifted. नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, जितना अट्रैक्शन होगा उतना स्पीड बढ़ता है, स्पीड गेट्स एक्सेलरेटेड, ताकि अच्छे से पिक्चर क्लियर आ सके। ठीक है, अच्छा, ये पहले कैथोड हुआ, उसके बाद एक ग्रिड प्लेस किया गया था, उसके बाद एक एनोड का सेक्शन प्लेस किया गया था। अब उसके बाद तुम देखो, दो जो ब्लू कलर का प्लेट्स हमने लिखे हैं, एक है मेरा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, एक है मेरा ऑरेंज कलर का जो है वो है हॉराइजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और ब्लू का जो है वो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अच्छा, 1 मिनट, जस्ट वन कॉल इज कमिंग, 1 मिनट।
1 minute. Okay, so वर्टिकल प्लेट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अप डाउन मूवमेंट देना, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को राइट लेफ्ट मूवमेंट देना. नाउ राइट लेफ्ट एंड अप डाउन दोनों ही क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे पास जो स्क्रीन है, दैट स्क्रीन इज एंटायरली स्ट्रेच्ड आउट ओवर अ सर्टेन एरिया. तो उस स्क्रीन में से ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक पूरा ही तो हमें इमेज चाहिए. मतलब जहां जहां जो जो होना चाहिए वो पूरा स्क्रीन जोड़ के हमें दिखना चाहिए. So if that is so, then all my electrons should be swept up and down, left and right, so that all the electrons gets scattered and it falls on the entire screen as much as possible, so that हमें पूरा स्क्रीन जोड़ के ये इमेज मिले, है ना. तो वर्टिकल टू पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स रहता है, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल. डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम यही है, जो स्पीड से मेरा अभी इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ पे, उसको हम लोग अप डाउन लेफ्ट राइट सारा जगह फैला देंगे, स्कैटर कर देंगे, ताकि पूरा स्क्रीन जोड़ के मेरे पास वो इमेज आए. ठीक है. नाउ इफ यू सी द स्क्रीन, आई हैव शोन समथिंग इन ग्रीन. आई जहां पे एक आई का पिक्चर है, उससे पहले स्क्रीन को हमने शो किए हैं. नाउ मेरा स्क्रीन फॉस्फर कोटेड क्यों है? कोई बता सकता है मेरा स्क्रीन फॉस्फर कोटेड क्यों है? Ma'am, when the electrons hit the phosphor skin, it's emits light, ma'am. या ये फॉस्फर स्क्रीन का बहुत एक अच्छा एग्जांपल रोड साइड पे कहाँ दिखता है? मैम रेडियम. कहाँ पे? रेडियम में. रोड साइड में. रोड साइड में कहाँ दिखता है? रोड में जब चलते हो गाड़ी लेके किसी भी रास्ते पे, हाईवे पे, कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है? Ma'am, on the divider. डिवाइडर है. फिर रोड साइड में साइड में देखते हो वहां पे, जहाँ पे वो रेड येलो कुछ मतलब सिंबल्स रहते हैं, गाड़ी का लाइट पड़ते ही वो दिखता है. ट्रीज के स्टेम में थोड़ा थोड़ा लाल देके एक छोटा छोटा चीज गथा रहता है. ऐसा वो जलता नहीं है. गाड़ी का लाइट जब ऑटोमेटिक पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो जल के एक सिंबल की तरह हमें दिखता है ना. हाईवे में हम लोग देखते हैं बहुत ये सब. तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. मतलब जब भी लाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेसिकली, लाइट तो कन्वर्ट होकर ये बन रहा है. जब भी पड़ेगा वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ग्लो कर जाएगा. सो जब भी स्क्रीन ग्लो करेगा तब भी आपको वो पिक्चर दिख जाएगा. तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट. सिंपलेस्ट टेक्निक में हम कोशिश किए समझाने की. बहुत सारा बुक्स मिलेंगे, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बहुत सारा चीज लिखा हुआ मिलेंगे. आई थॉट आई हैव बीन एबल, मतलब सिंपलेस्ट वे में हम जितना भी समझा पाए हम कोशिश किए. सो पूरा 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 प्रिंसिपल अभी अगर जॉट डाउन करना है, क्या है कि ट्यूब का जो भीतर है वो वैक्यूम है ऑलरेडी उसके अंदर. सो वैक्यूम में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स कॉलिशन होगा, इलेक्ट्रॉन बीम मेरा स्कैटर हो जाएगा. ठीक ना. अभी हीटर मेरा हाई टेम्परेचर रेज हो गया, और कैथोड के सरफेस से मेरा इलेक्ट्रॉन्स एमिट करना और इवापोरेट करना, जो भी तुम बोलो, वो स्टार्ट हो गया. अभी उसके बाद है एक एक्सेलरेटिंग एनोड, राइट. एक्सेलरेटिंग एनोड अभी क्या है? एक्सेलरेटिंग एनोड ऑलरेडी ना एक हाई पोटेंशियल में मेंटेन होता है. सपोज अप टू आई थिंक 20 केवी है. 20 केवी में इतना वोल्टेज में, एक हाई पोटेंशियल वोल्टेज में वो मेंटेन होता है.
ठीक है, मतलब कैथोड का जो वोल्टेज है उससे एनोड का वोल्टेज ज्यादा रहता है ना। ज्यादा क्यों रहता है? ये जो तुम्हारा डिफरेंस है ना, कैथोड का वोल्टेज और एनोड का वोल्टेज, एंड ऑल्सो कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, ये राइज देता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। जो ये एक्सेलरेटिंग एनोड एंड कैथोड के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उससे मेरा इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मेरा सामने की तरफ बढ़ता है। सो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, कैथोड ऑलरेडी एक हाई वोल्टेज में है और एनोड का वोल्टेज उससे भी ज्यादा है। दोनों में का ये वोल्टेज डिफरेंस जो है उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से मेरा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई वेलोसिटी से मेरा सामने की तरफ, मतलब फ्लोरेसेंट स्क्रीन की तरफ मेरा बढ़ गया, है ना। एंड जो एरिया पे स्क्रीन में जो एरिया पे मेरा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो जाके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो जो एरिया में मेरा इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करेगा वो एरिया मेरा ब्राइटली ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। और ये जो कंट्रोल ग्रिड है, एंटायर जो कंट्रोल ग्रिड है, वो क्या करता है? वो रेगुलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड की तरफ रीच करे, एंड फाइनली कितना ब्राइटनेस से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ब्राइटनेस होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ब्राइटनेस से वो स्क्रीन के ऊपर हिट कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रोल करता है। और ये जो फोकसिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड क्या करेगा? फोकस्ड होके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेरा कैथोड को लीव कर रहा है वो इधर उधर ना जाए, फोकस्ड होके सेम स्पॉट की तरफ सारा बने। So this entire assembly of this cathode, this control grid and this focusing anode and accelerating electrode जो भी है, ये total electron gun कहा जाता है। So the cathode, the control grid, the focusing anode and the accelerating anode, ये जो चारों चीज total as a package है, in order to make all the electrons glow and hit the screen with a good velocity, ये टोटल पैकेज को हम लोग इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। फाइन, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दो पेयर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू पास हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लेट्स के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट किए, और नेक्स्ट वाले पेयर में जो फर्स्ट वाले में उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट किए, और नेक्स्ट वाले पेयर जो मेरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का है उसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट किए। ठीक है ना। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्यों चाहिए? कोई बोलो तो एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स चाहिए क्यों? मेरा नहीं रहता तो भी तो मेरा इलेक्ट्रॉन सामने जाके स्क्रीन को हिट करता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्यों चाहिए? एनीवन? क्योंकि वो पूरा एरिया मैम कवर नहीं डिफ्लेक्टिंग करता। नहीं रहेगा तो मैम एक ही जगह पे हिट करेगा मैम सिर्फ। हाँ, राइट राइट, वेरी नाइस। सो अगर नहीं रहेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब जो भी है वो वहां पे जाके एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर देगा। हमको तो वो चाहिए नहीं, हमको पूरा स्क्रीन जोड़ के इमेज देखना है। सो दिस इज द नीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, फाइन। So this was all about the CRT, basic working principle of the CRT. Okay, so I will stop here today, and all of you people please just write your name in the chat box, and if you have any question you may ask me now. Students who are
already writing their name. If you do not have any question, you may leave the class. And if anyone has any question, I am waiting. You may ask your question now. ये समझ में आया है तो जो मैम, हम वहाँ बोलो। मैम वो एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पिन के थ्रू जा रहा है बेस हीटर में, तो मैम वो आप पॉलिशिंग वाला कुछ बोले थे ना? एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। यस मैम, मैं वो बोला। वो हम नॉर्मल सा लॉजिक बोले जो हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं ना। हम लोग ये प्रेशर का बात आया क्यों है, हम जो बोल रहे हैं ना कि मतलब वैक्यूम ज्यादा रखना है, मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा रखना है वैक्यूम के अंदर, फिलामेंट के अंदर प्रेशर ज्यादा रखना है, वैक्यूम ज्यादा रखना है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग 11-12 फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जितना प्रेशर आपका ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रॉन्स और एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड होके इलेक्ट्रॉन बीम उतना ज्यादा निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स को लेके हम लोग एक बीम बनाते हैं ना, तो जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर रखेंगे उतना ज्यादा वो कॉलिशन होगा, बाहर आके एयर मॉलिक्यूल्स के साथ उतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन बीम मोटा करके निकलता है। ये बस हम बोल रहे थे। ये सीआरटी के लिए नहीं है। एनी वैक्यूम, मतलब ग्लास ट्यूब में वैक्यूम का जो कॉन्सेप्ट है, वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम which we have studied in class 11-12, उसका बस एक लाइन का बोले हम। सीआरटी के लिए ही है ऐसा नहीं है, सीआरटी भी इसके ऊपर डिपेंड करता है बस। Okay, so people who have written their name, you may all leave the class. Okay, and still if anyone have any query, हाँ बोलो। मैम कैथोड रे ट्यूब में होता है कि अगर टीवी के आसपास अगर मैग्नेट हो तो उसके स्क्रीन पे कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पिक्चर जो टीवी में दिखता है वो क्लियर नहीं होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर तुम मैग्नेट रखोगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, अभी मैग्नेटिक फील्ड्स का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स कॉम्बाइन होके आपका डिस्टर्ब्ड दिखेगा। इलेक्ट्रिक जहां से करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास मैग्नेट, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए तो मेरा विजन का था नहीं, मेरा था नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वर्ट होके आएगा। सो इसलिए कुछ इक्वेशंस अलग होता है इन दौरान, मतलब उसका फील्ड के चलते कुछ इधर उधर होता है, जिसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखता है स्क्रीन में। समझ में आया? यस मैम। मतलब जो पूछे थे वो नहीं है क्या? और पढ़ना, ये मैग्नेट का जो बात वो पूछे वो एलसीडीज में अभी नहीं होता है। तुम अभी एलसीडी एलईडीज में देखना, अभी स्क्रीन का प्रॉब्लम्स नहीं होता है उतना। ये पहले का बात वो शायद बोल रही थी, पहले में ऐसा होता था। यस मैम, ये सब कैथोड रे ट्यूब वाला में होता था। हाँ, अभी एलसीडी एलईडीज में ये सब नहीं होता, ये सब कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। वो मैग्नेट क्या करेगा ना, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ ही डिस्टॉर्ट कर देगा। तो
अब पाथ जब डिस्टॉर्ट करेगा तो उसका इफेक्ट तो मेरा स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अब इफेक्ट किस टाइम में क्या दिखेगा वो थोड़ी ना किसको पता है, वो जो इफेक्ट दिखेगा दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है उसको ही पूरा डिस्टॉर्ट कर देता है मैग्नेट एक फील्ड बना के। ठीक है? Yes, ma'am. So Yes. that's all for today's class. Thank you so much. So if you all have given your attendance, you may all leave the class. Thank you.